Hello everyone. Back to the book series, and this time I have targeted my own book, a review book of Nanotherapy by Dr. Kumar PT. So let's continue with the chapter number 12, and 11 chapters are already uploaded, and I will try my best to complete this book so that we should proceed to another book for to continue this series. So chapter 12 we have the name is techniques, और इसमें कुछ मेनोथेरेपी की टेक्निक्स हैं, लेकिन वो टेक्निक अप्लाई करने से पहले उसकी क्या प्रिकॉशंस होती हैं, क्या चीजें होती है, उनको देखना होता है. तो एज वी इफ वी टॉक अबाउट द स्पाइनल मैनोथेरेपी टेक्निक, आर बेसिकली द टू वेव जो कि मोस्ट कॉमनली वी अप्लाई थ्रू द इन द क्लिनिक practice. The first we better thought of as a mobilization, in which the gentle oscillatory movements are performed, are used, rhythmic oscillations we apply. Then we divide into the five grades, the grade 1, 2, and onward, as we have already discussed in different school of thoughts in the last chapter. And then second is basically the forcing of a movement near the lanes of motion by a sudden thrust, which you call the manipulation या कैरोपिक टेक्निक. तो अगर हम स्पाइनल मैनिपुलेशन या स्पाइनल मैनोथेरेपी टेक्निक्स की बात करें, तो वहां पर ज्यादातर मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन ही हैं. इसके अलावा ज्यादातर अच्छी चीजें नहीं होती. मोबिलाइजेशन में हम बात करें तो ग्रेड 1 2 से लेके ग्रेड 4 तक मोबिलाइजिंग है, और ग्रेड 5 जो है वो आपका मैनिपुलेशन है. मोबिलाइजेशन मतलब विद इन अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन, जो आप उसको मोबिलाइज करते हो स्पाइनस प्रोसेस को या ट्रांसवर्स प्रोसेस को. मैनिपुलेशन जब व्हेन यू ब्रिंग इट, when you apply the HVLA, high velocity low amplitude thrust, and when you bring the joint out of the end range, out of the available range. So difference between these two techniques, definitely they may that you may see the negligible when comparing a strongly applied mobilization with a gentle manipulative thrust. But there is an important difference. Main difference: the patient can also resist the mobilization if it should become too painful. Okay? So whereas the suddenness of forceful manipulation prevents any control by the patient. However, the sudden thrust which we give, definitely mobilization में हम oscillations देते हैं, और वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है, बिकॉज वी डोंट अप्लाई ओनली फॉर अ वंस मोबिलाइजेशन, इट इज ऑलवेज अप्लाइड फॉर मैक्सिमम 6 to 8 या 8 to 10 oscillating mobilizing movements are performed. But when you talk about the manipulation, it is only applied once. Once you bring the position at the end range, and you can apply the high velocity thrust to manipulate the joint. So the technique mentioned in this book, they are mainly intended, और इनका सोलो पर्पस ये है, इन दे आर बेसिकली इंटेंडेड टू बी अ बेसिस, to form a basis which innumerable variation can be derived. जाहिर सी बात है, जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो मैंने भी ये टेक्निक जो मेंशन की है वो डिफरेंट मेनोथेरेपी बुक से अप्लाई की है. तो इसका बेसिस मकसद सिर्फ ये है कि आपका एक बेसिकली बेसिस बनाना, ताकि आपको बेसिक आइडियाज हो रिगार्डिंग द मेनोथेरेपी टेक्निक्स, हाउ दे आर अप्लाइड. तो देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ द डिफरेंट टेक्निक्स. इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुत सारे टेक्निक्स और भी मौजूद हैं, और एक ही डिलाइड या एक ही मोबिलाइजेशन डिफरेंट पोजिशन के साथ अप्लाई की जा सकती है, ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है. तो टेक्निक जो मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, उसका बेसिस सिर्फ मकसद ये है कि मैं आपको इजी एक्सप्लेनेबल वे में आपको जो है वो जो मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स है उनको मैं समझा सकूँ. सिंपल इज दैट. सो जस्ट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बेसिस टू नो अबाउट द मैनुअल थेरेपी टेक्निक. So knowing the this is a small quotation from my side. The two knowing thousand of the manual therapy techniques alone don't necessarily make you a skilled practitioner unless you understand which one is needed for a specific condition. मतलब अगर आपको हजारों मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स आती हो, लेकिन आपको ये ना पता हो कि कौन सी जरूरत के वक्त एक टेक्निक उनमें से इफेक्टिव है, तो मेरे ख्याल से आप एक स्किल्ड प्रैक्टिशनर नहीं है. तो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपको हजारों मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स का आना जरूरी नहीं है, उस एक टेक्निक का आना जरूरी है जो वहां पर needed है. So it is important that the technique of mobilization should be mastered before the manipulation is attempt. तो पहले जब आप mobilization टेक्निक सीखो तो ही जाके मैनिपुलेशन अप्लाई करें तो ज्यादा बेहतर है. डायरेक्टली मैनिपुलेशन सीख के आप मैनिपुलेशन अप्लाई ना करें, दैट वुड बी द बेटर. आप उसको पहले स्किल लेवल तक ले जाएं, उसको प्रैक्टिस करें, देन यू कैन अप्लाई ओवर द पेशेंट. तो कम टू द टेक्निक प्रिंसिपल्स की तरफ हम आ जाते हैं कि ये जो टेक्निक्स हैं इनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, राइट. Learning manual therapy techniques, as far as these topics are mentioned in the HEC, so I have just given them as it is. As skill develops with the practice and experience, जैसे जैसे आपकी skills develop होती हैं practice और experience से, the physiotherapist sometimes find that the starting position other than those described as easier. Definitely जैसे ही आपकी skills और practice आ जाती है तो different types of the joint positions हैं, like starting position है वो आपको easily मिल जाती है rather than at a early stage. So practitioner they new to the manual therapy technique are dangerously heavy-handed, so it may make take practice before a practitioner can reliable sense, right. तो जिस तरह एंड फील है,
एंड फील किसी भी प्रैक्टिशनर को अली नहीं होती। तो जो प्रैक्टिशनर नया होता है मैनुअल थेरेपी अप्लाई करते वक्त, उनको बिल्कुल एहतियात से ये चीजें अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी की स्पाइन के साथ यू कांट mobilize them with a heavy ended basically. So definitely it's very risky and dangerous for a new practitioner who is applying directly over the patient. तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लेती है, तब तक आपको एंड फील मिले, रेजिस्टेंस फील हो, फर्स्ट और स्टॉप फील हो, ये सारी चीजें। तो इट कैन बी likened to the way in which one feels the meshing of a cones in a gearbox। तो मतलब ये ऐसा है कि जिस तरह हम कोई, जैसे मैंने पिक्चर दी है एक मैनुअल गेयर बॉक्स की, जिस तरह गाड़ी वगैरह में गेयर वगैरह जिस तरह लगते हैं, तो अगर अर्लियर नया बंदा जब होता है, लेट सपोज, तो उसको स्टॉप का पता नहीं लग रहा होता जब वो गियर चेंज करता है, गियर 1 से 2, 2 से 3 ऑनवर्ड, या रिवर्स गियर वगैरह, तो उसको वो स्टॉप का पता नहीं लग रहा हो कि कहाँ पे स्टॉप करना है। मैं तो वो क्या करता है, पहले गियर की तरफ देखता है, जो न्यू ड्राइवर होता है बेसिकली, न्यू लर्नर होता है। तो सेम विद द मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन एज वेल। वंस यू बिकम द स्किल्ड, जब आप वो ड्राइवर स्किल्ड बन जाता है, तो उसको मेरे ख्याल से बार बार नीचे गियर की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड इजीली कैन डू द एक्सचेंज ऑफ द गियर्स। बहरहाल तो ये मैंने एक एग्जांपल पुट किया हुआ है। तो दिस इज द कटवे गियर बॉक्स के बारे में समझाया गया है, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो बिगिनर जो प्रैक्टिशनर होते हैं, नए नए सीखने वाले, दे शुड फोकस ऑन मास्टरिंग द एग्जामिनेशन टेक्निक्स। एग्जामिन और ट्रीटमेंट की जो टेक्निक्स होती है उनको पहले मास्टर करना लाजम होता है। स्पेसिफिकली कि कैसे आपको पता लगे कि आप ग्रेड 1 अप्लाई करें, 2, 3 या 4, तो इन ग्रेड्स को आपने मास्टर करना जो है वो लाजम होता है। तो स्पेसिफिकली व्हेन यू आर अप्लाइंग मोबिलाइजेशन ऑन द एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल, जस्ट लाइक वी डू, आई डू इन वर्कशॉप्स ऑन द मॉडल, तो वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो वो तो आपको बता देंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, वहां पे सिम्टम्स एग्जैजरेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, सिम्टम के साथ नहीं आता वो। लेकिन जब आप पेशेंट्स के लिए अप्लाई करते हो, तो वो पेशेंट सिम्टम के साथ होते हैं। एवरी टेक्निक यू परफॉर्म, that should need to be focused, and that should be applied with very precautions. So in every technique, it is a physiotherapist's own body that should initiate the movement. तो start में physiotherapist की body ही movement को initiate कराती है। Then you decide which type of the hand, thumb and fingers of physiotherapist that should never primarily be drivers of the movement, definitely, and then instead their muscle should engage eccentrically rather than concentrically। तो ये एक पैटर्न बताया गया है, how you basically approach toward the patient। So regardless of the parts of the arm or body used to transmit the movement, मतलब ये समझा रहा है, when you are mobilizing the spinous process, or when you, for example, applying a thoracic manipulation or mobilization, you should not use only the arm forces, but you also can apply your body weight। So your elbows should be extended in order to transmit the body weight into the patient's body। तो आप अपने बॉडी वेट ट्रांसफर करने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपने बॉडी का फोर्स अप्लाई करें, रादर देन सिर्फ जो है आप ये अप्लाई करें कि हैंड फोर्स। क्योंकि अगर आप हाथ का फोर्स लगाएंगे सिर्फ, तो जाहिर सी बात है, एक पेशेंट दो पेशेंट करेंगे तो आप भी थक जाएंगे। तो यू नीड टू मास्टर इन ऑर्डर टू ट्रांसफर योर बॉडी वेट फ्रॉम योर बॉडी via the ends toward the patient's body। So many individuals mistakenly assume that the passive movement therapy always entails the stretching। ज्यादातर ये लोग यही समझे, हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है, मतलब ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत भी नहीं है, लेकिन चले इतना भी सही नहीं है। सो nonetheless the therapy consistently engages with the movement irrespective of the whether stretching is involved or not। So therefore ability to perceive the movement is important। आपने मूवमेंट को परसीव करना लाजम होता है। ज्यादातर टेक्निक्स जो है ऑसिलेटरी मूवमेंट जिसमें अप्लाई होती है, लेकिन अगर ऑसिलेशन रेट जो है एक्सेसिवली फास्ट है, या तो ज्यादा फास्ट है या ज्यादा स्लो है, तो वो आपके लिए भी चैलेंजिंग बन जाएगा, क्योंकि आप मूवमेंट को सेंस नहीं कर पा रहे, फील नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो गेनिंग दिस फील, ये फील हासिल करना मूवमेंट का बहुत ही जरूरी है इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ मैनुअल थेरेपी टेक्निक एडिक्वेटली। नेक्स्ट भी है, व्हेन प्रैक्टिसिंग द टेक्निक दे पे अटेंशन। आपको कहाँ पर प्रैक्टिसिंग के वक्त अटेंशन देनी चाहिए? सबसे पहले पोजीशनिंग, पोजीशनिंग ना कि सिर्फ पेशेंट की, बट थेरेपिस्ट की भी। आप एक सेशन ले रहे हो पेशेंट का और बार बार पेशेंट की पोजीशन चेंज करा रहे हो, वो भी गलत है। आप ऐसी पोजीशन चूज करें जिसमें मैक्सिमम मूवमेंट आप अप्लाई कर सको, फिर आप पोजीशन चेंज करा सको। ऐसा नहीं पोजीशन चेंज करानी नहीं है, लेकिन मिनिमम चूज दोज पोजीशन इन विच द मैक्सिमम टेक्निक्स आर अप्लाइड, एंड इनडायरेक्टली मैक्सिमम पोजीशन आप तब उस सूरत में ही चेंज कराओ जहां पर आपको लगे कि जरूरत है। लेकिन अगर आप मिनिमम पोजीशन चेंज कराए पेशेंट की, आप अपने सेशन या अपनी टेक्निक्स को अप्लाई करने की कोशिश करें। देन डेफिनेटली स्पीड, रिदम और ग्रेडिंग ऑफ द मूवमेंट आप पहले ही डिसाइड करेंगे विच टाइप ऑफ द स्पीड, मतलब यू कैन कॉल फॉर द इंटेंसिटी, विच टाइप ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज यू आर गोइंग टू अप्लाई, व्हाट शुड बी द रिदम एंड ग्रेडिंग सिस्टम ऑलवेज। देन द कॉन्टेक्ट ऑफ हैंड्स ऑलवेज, आप जो मैनुअली कॉन्टेक्ट करते हो वो भी चूज करते हो, और अगर आपकी पोजीशन कोई मॉडिफिकेशन करनी है पेशेंट की स्ट्रक्चर में, पेशेंट की पोजीशन में, तो डू बिफोर दैट। तो लर्निंग द स्पेसिफिक मैनुअल मोबिलिटी
testing in the spine. Technique that involve the pressure against the some part of the vertebra, जो वो टेक्निक जस्ट लाइक मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन, जस्ट लाइक मोबिलाइजेशन की भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो जब आप किसी वर्टिब्रा पे अप्लाई करते हो, वो स्पेशल केयर रिक्वायर करते हैं। द थंब आप कौन सा चूज करते हो, फॉर एग्जांपल थंब नहीं, मतलब कौन सा पार्ट ऑफ द हैंड्स, लाइक when you apply a spinal, when you are mobilizing the cervical spinous process or cervical transverse process, you will prefer the thumbs. When the same mobilization, when you talk about the bulky in the patient at the thoracic spine, you will prefer your ulnar border. When you prefer to mobilize the transverse process of thoracic spine, you will prefer the pisiform bone. तो कौन सा बॉडी का थंब का हाथ का पार्ट आपने यूज करना है वो भी डिपेंड करता है, बिकॉज इट्स बेसिकली द मीडियम बिफोर योर टेक्निक you are going to be execute, yeah, you are going to be apply and within that body. So working eccentrically, so or only the medium through which the concentric movement of the physiotherapist body, your body, can transfer the body weight into the vertebra in order to produce the movement. So this is the best way to choose the working the eccentrically of your muscle rather than concentrically. So if the intrinsic muscles of hand are used, अगर आप अपने हाथों के muscles को यूज कर रहे हो प्रेशर अप्लाई करने के लिए, तो टेक्निक इमीडिएटली अनकंफर्टेबल होने लगेगी, क्योंकि आपको भी तो वो चीज चुभेगी ना। क्योंकि आप पेशेंट के ऊपर लगातार अगर हाथ का फोर्स लगा रहे हो, यू आर नॉट ट्रांसमिटिंग योर बॉडी वेट, लेट सपोज, तो ऐसी बात है 8-10 पेशेंट करके आप भी थक जाओगे। सो इट्स अ गुड in order to transmit your body and use your hands as a lever. So apply the force coming from your body over the patient rather than transmitting directly from your hands generated by the arm muscles. So we have observed that engaging in the soft tissue treatment, particularly the functional different types of the massage, the aids in the developmental of the passive movement skill. Over the time spent working with the soft tissue, जब ये चीजें वक्त के साथ चलती रहती हैं, तो प्रैक्टिशनर जब ग्रेजुअली गेन करता है एबिलिटी टू डिस्टर्न द प्रेजेंस ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स। बहरहाल सब्सिक्वेंटली अगर मैं इसको समराइज करूं, तो वो ये है कि आपको अपने बॉडी का वेट और कहाँ पे कौन सा फोर्स, बल्कि पेशेंट है, बॉडी बिल्डिंग muscular body, let's suppose, definitely you will prefer to transfer your body weight rather than your hand arm forces. So to produce the maximum movement of a normal joint and in any direction when practicing, it is easier to gain the fullest range with the least effort for physiotherapist and without the strain to the model. So if a joint is mispositioned, if a joint is positioned as near as available range, the mid range of the all ranges can be achieved. Let's suppose when you are want to apply over a manipulation, you can't bring the joint from initial range up to a directly manipulation with a thrust. You need to bring the joint at an end range first, and then a small force is enough to create a manipulation. So whenever you are going to apply these manual techniques, there's a considerable normal anatomical variation from individual to individual. हर किसी इंसान की जो anatomy है वो इंसान से दूसरे इंसान की तरफ वेरी करती है। तो आपने एक प्रॉपर anatomy का भी पता होना चाहिए, नो डाउट कंसीडर द asymmetry फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू द अदर साइड। ये भी पॉसिबल है कि किसी का राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड की सिमेट्री से वेरी करता हो, मतलब लाजमी नहीं कि राइट और लेफ्ट साइड की दोनों सिमेट्री जो है वो सेम हो। तो द स्किल प्रैक्टिशनर कैन मेक्स अ ट्रीटमेंट डिसीजन प्राइमरली बेस्ड ऑन द एबनॉर्मल क्वालिटी ऑफ द मूवमेंट, नॉट रिटर्न ओनली, ठीक है, उसको मेजर भी करना चाहिए। फंक्शनल जॉइंट एनाटमी की अगर हम वेरिएशन बात करें, तो 2-3 मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कि ड्यूरिंग द जॉइंट प्ले टेस्टिंग ऑफ द एसी जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, आपको ये भी पता चले कि जो कॉनकेव जॉइंट सरफेस है, अगर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की बात करें, लेट्स सपोज एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला एंड देन यू हैव अ कोरेकोइड क्लेविकुलर पार्ट, द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल, उनके दरमियान भी एनाटॉमिकल जो है वो वेरिएशन होती है। दूसरा एग्जांपल मैंने पुट किया हुआ है कि आपके पेशेंट्स का टोटल रेंज ऑफ द सर्वाइकल रोटेशन है, लेट्स सपोज, इज विद इन द एस्टेब्लिश्ड नॉर्म, और कितनी होती है, देयर इज अ 10 डिग्री मोर राइट रोटेशन देन द लेफ्ट रोटेशन। ये भी एनाटॉमिकल वेरिएशन है कि राइट साइड की सर्वाइकल रोटेशन इज मोर एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड, स्पेशली 10 डिग्री इज अ बिग change. Now come to when you apply the manual therapy techniques that involve the two pressure, then you palpate. Just like as you can see in the picture, अगर हम spinous process की बात करें, so we are choosing the both sides of the thumbs and putting it directly over the spinous process in order to mobilize. Just look at on the left side. Now the same mobilization is given at the transverse process as well by putting it between the spinous and transverse over the lamina exactly. So technique may be used in the treatment for a stiff joint with the insertion with the intention of increasing its range, so the movement is produced by the thumb. अगर आपका थेरेपिस्ट का इंटेंशन जो है किसी वो स्टिफ जॉइंट के ऊपर अप्लाई कर रहा है और आपकी इंटेंशन ये है कि रेंज अगर बढ़ानी है, लेट सपोज, तो जो मूवमेंट प्रोड्यूस्ड होगी वो थंब प्रेशर से आ सकती है डायरेक्टली
putting over the vertebra, just like you perform the unilateral mobilization, PA mobilization, just like that. So the same technique that can also be used for the purpose of the pain rather than the stiffness. तो आप क्या करोगे, स्मॉल ऑसिलेटरी मूवमेंट्स प्रोड्यूस करोगे. सो अपॉन अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस द मेथड इज प्रोड्यूस द लार्जर एंड एम्पलीट्यूड. आपने ग्रेड 1 टू मोबिलाइजेशन करनी है, लेकिन लार्जर एम्पलीट्यूड जो है वो अप्लाई करना है. दैट इज ओनली पॉसिबल विद द जेंटल ऑफ द प्रेशर विदाउट फीलिंग एनी डिग्री ऑफ स्टिफनेस. अब आपका मकसद ही ग्रेड 1 टू मोबिलाइजेशन करना है और आपने लार्जर एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करना है, तो आपने स्टिफनेस का टेंशन नहीं लेनी, उसको फील किए बगैर ही यू कैन डायरेक्टली अप्लाई लार्जर एम्पलीट्यूड. दैट इज अ ग्रेड 2 बेसिकली. While if a PA, posterior anterior, PA pressure अगर आप यूज कर रहे हो spinous process से, then the care must be exercised. So in short, if I explain you कि आपने बॉडी हाथ का कौन सा पार्ट यूज करना है, वो डिपेंड करता है पेशेंट बल्कि कितना है, पेशेंट का बल्क कितना है, और कौन सा प्रोसेस आप अप्लाई करना चाहते हो, ट्रांसवर्स प्रोसेस या स्पाइनस प्रोसेस. Then you use your hand part accordingly. नाउ इफ यू कैन सी द पिक्चर बेसिकली, कि जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ऊपर वाली जो करेक्ट स्टेटमेंट है कि 3 बोल्ट 3 सेगमेंट आपके यहाँ रखे गए हैं, तो इफ यू अप्लाई डायरेक्टली फोर्स एट ए सेंटर, तो आपका मकसद बिल्कुल प्रॉपर होगा. सेंट्रल स्पाइनस प्रोसेस ही नीचे जाएगा. इनकरेक्ट अगर आप देखें तो आप अगर सेंटर पे अप्लाई नहीं करते ऑन योर राइट साइड, तो वो भी गलत है, ऑन योर लेफ्ट साइड वो भी आपके गलत है. तो दिस बोथ आर द इनकरेक्ट वे. ऑन योर राइट साइड इनकरेक्ट वे में ये बताया गया कि फोर्स लॉन्गिट्यूडनली एक्सियल फोर्स अप्लाई किया, लेकिन सेंटर पे नहीं था. ऑन योर लेफ्ट साइड जो इनकरेक्ट है वो ये शो किया गया कि एक तो सेंटर पे तो था, सेंटर पे नहीं था, प्लस में एक्सियल फोर्स भी नहीं था, वो डायगोनल फोर्स था. तो इट आल्सो डिपेंड. सो एज यू कैन सी आई हैव पुट सम पिक्चर ऑन राइट थंब, तो आपको फील हो कि आपने कैसे, तो कॉन्टेक्टिंग जो पॉइंट्स है वो 4 हैं बेसिकली. ठीक है, एज यू कैन सी ऑन योर राइट साइड ऑन योर थंब ऑफ द राइट थंब. So the treatment technique जो है that can be used in the two basic sets of a circumstances. The treatment of the stiff joint या pain, या तो हम पेन के लिए मोबिलाइज करेंगे या स्टिफ जॉइंट के लिए. ठीक है. Then what is your objective beyond applying these? So the difference between a joint testing technique and a joint treatment technique. Joint testing मतलब examination, जब आप किसी joint को examination के लिए टेस्ट करना चाहते हो और आप मोबिलाइज कर रहे हो, और या किसी joint को आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो. ठीक है. लाइक द जॉइंट प्लेस जो टेस्टिंग होती है टेक्निक्स, वो अप्लाई की जाती है रेस्टिंग पोजीशन में, जिस तरह ग्रेड 1 2 ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन है जो कि दी जाती है पेन के लिए. लेकिन ग्रेड 3 जो स्ट्रेच मोबिलाइजेशन है, वहां पर हम समटाइम आल्सो यूज फॉर द सिम्टम लोकलाइजेशन, स्पेशली एट द एंड फील्ड टेस्टिंग. ठीक है. तो बाय मॉडिफाइंग ए ग्रिप, आप जब ग्रिप मॉडिफाई करते हो, फिक्सेशन मॉडिफाई करते हो, या पोजीशन ज्वाइंट पोजीशन चेंज करते हो, न्यूमरस ज्वाइंट मोबिलाइजेशन कैन बी टेलर्ड फॉर द वेरियस पर्पसेस, सच एज सर्विंग एज अ टेस्ट ट्रीटमेंट, या तो टेस्ट के लिए कर रहे हो या ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हो, पेन रिलीफ के लिए कर रहे हो, रिलैक्सेशन के लिए या स्ट्रेट मोबिलाइजेशन के लिए. फर्दर मो ज्वाइंट पोजीशन को अगर आप चेंज करते हो लेट सपोज, तो वो आपके टेस्ट और ट्रीटमेंट की स्पेसिफिसिटी को भी इंडिकेट करता है. ठीक है. So the beauty of manual therapy techniques or any medical terminologies lies in their titles. ज्यादातर manual therapy की जितने भी या मेडिकल में जो वर्ड्स होते हैं, टाइटल्स होते हैं, उसकी डेफिनेशन भी उसी में ही मौजूद होती है. जस्ट लाइक सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, मसाज, मैन्युपुलेशन, वो वर्ड ही बता रहा है, उसकी डेफिनेशन उसकी इंडिकेट हो जाती है. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट टाइटल. जस्ट लाइक टेस्ट. टेस्ट का मतलब होता है कोई चीज चेक करना. तो समटाइम इट्स अ टेक्निक दैट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर असेसमेंट और अ टेस्ट पर्पस. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द टेस्ट. ठीक है. टेस्ट एंड मोबिलाइजेशन वर्ड ही बता रहा है कि कोई चीज टेस्ट करके मोबिलाइजेशन के लिए यूज हो रही है. मोबिलाइजेशन मतलब किसी चीज को मोबिलाइज करना. तो वो ग्रेड 1 2 भी हो सकता है, ग्रेड 3 4 भी हो सकता है, ग्रेड 5 भी मोबिलाइजेशन है, लेकिन उसको मैनिपुलेशन कहा जाता है. राइट. तो वर्ड ही बता रहा है टेस्ट एंड मोबिलाइजेशन. Okay. Moreover, it is important to recognize that both testing and mobilization they can produce often utilize the same grip as well. हाँ, ट्रीटमेंट और मोबिलाइजेशन सेम ग्रिप के साथ हो सकती है. इसका मतलब ये है कि ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन जो है या वेरियस मोबिलाइजेशन टेक्निक एम्प्लॉय की जाती हैं टेस्टिंग ज्वाइंट इंटेग्रिटी के लिए भी, एंड दे आर आल्सो यूज्ड एज अ पर्पस ऑफ द ट्रीटमेंट. टेस्ट एंड स्ट्रेच मोबिलाइजेशन नाम ही बता रहा है. दिस आल्सो इंडिकेट दैट दिस टेक्निक इज रिकमेंडेड फॉर द टेस्टिंग. टेस्टिंग के लिए भी बनी है और ट्रीटमेंट के लिए. ट्रीटमेंट कौन सा, स्ट्रेच मोबिलाइजेशन के लिए भी बना हुआ है. ठीक है, मतलब ग्रेड 3. स्ट्रेच मोबिलाइजेशन नाम ही बता रहा है कि पहले शॉर्टेंड स्ट्रक्चर को स्ट्रेच किया जाएगा, नंबर 1. ठीक है. अल्टरनेटिव ग्रेप्स इसमें यूज की जाती है, लॉकिंग टेक्निक यूज की जाती है. इसमें क्या होता है, फॉर इफेक्टिव स्ट्रेच एंड मोबिलाइजेशन पहले आप अच्छा खासा स्ट्रेच करते हो शॉर्टेंड स्ट्रक्चर को रेस्टिंग पोजीशन में, और फिर उसको मोबिलाइज करते हो. ठीक है. मेरे ख्याल से ये हम बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं.
देन वी गो फॉर स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब पेशेंट के लिए जब भी आप कोई ट्रीटमेंट या टेस्टिंग टेक्निक यूज कर रहे हो, स्टार्टिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो स्टार्टिंग पोजीशन मैनुअल थेरेपी में मतलब इनिशियल पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन क्या होगी या बॉडी की अलाइनमेंट क्या होगी बिफोर यू अप्लाई टू एनी, बिफोर यू अप्लाई एनी टेस्ट, एनी टेक्निक फॉर अ टेस्टिंग पर्पस और फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। तो कॉमन स्टार्टिंग पोजीशन जो रिलाई करती है, फॉर एग्जांपल शोल्डर का मोबिलाइजेशन आप अमूमन सुपाइन में देते हो, बाकी सारे सारे के ग्लाइड एक्सेप्ट एंटीरियर ग्लाइड आप प्रोन में देते हो। तो ये इनिशियल पोजीशन है ना, स्टार्टिंग पोजीशन है बेसिकली। हिप के जितने भी मोबिलाइजेशन या थ्रस्ट हैं वो भी सुपाइन में दिए जाते हैं। तो दैट इंडिकेट टू द स्टार्टिंग पोजीशन। तो चॉइस ऑफ द स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन ऑफ मैनुअल थेरेपी टेक्निक के ऊपर, और वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज एक पेशेंट का बहुत वजन है, पेट निकला हुआ है, वो कहता है मैं प्रोन नहीं लेट सकता, यू विल चूज द अल्टरनेट पोजीशन, लेकिन प्राइमरली उसके लिए भले वही थी। दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द पेशेंट पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन मतलब किसी की भी हो सकती है। दैट स्टार्टिंग पोजीशन नाम ही बता रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन द पोजीशन विच इज selected at the start before you start the session, simple as that. Then you come to the patient position. अच्छा, स्टार्टिंग पोजीशन आपकी भी हो सकती है, व्हाट वुड बी योर स्टार्टिंग पोजीशन एज वेल, ठीक है, बिफोर यू अप्लाई एनी टेक्निक टू टेस्ट और टू ट्रीट। पेशेंट पोजीशन स्पेसिफिकली पेशेंट पोजीशन की बात कर रहा है कि बिफोर यू अप्लाई द मैनुअल थेरेपी टेक्निक या ड्यूरिंग द मैनुअल थेरेपी टेक्निक आप किस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हो और पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो बिफोर इनिशिएटिंग एनी मैनुअल थेरेपी टेक्निक थेरेपिस्ट ने असेस करना चाहिए पेशेंट की कंडीशन को, जिसमें उसकी रेंज ऑफ मोशन देखे, पेन सीवियरिटी देखे, एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन देखे बिफोर ही अप्लाई एनी मैनुअल थेरेपी टेक्निक। देन थेरेपिस्ट इंश्योर करता है कि पेशेंट को सही पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में प्लेस किया गया है, टेबल पे, चेयर पे, एग्जामिनेशन काउच पे वगैरह, ताकि जो प्रॉपर मकसद है आपका रिलैक्सेशन को प्रमोट करना, मसल टेंशन को कम करना, डिस्कम्फर्ट को कम करना और बॉडी को अलाइन करना। तो इन एरिया जो बॉडी ट्रीट कर रही है, जो बॉडी का एरिया जो ट्रीटेबल है, बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ द बॉडी विच इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एंड स्पेसिफिक टेक्निक बीइंग यूज, थेरेपिस्ट ने चूज करना है पेशेंट की पहले स्टार्टिंग पोजीशन, फिर पेशेंट की पोजीशन को चूज करना है। तो अगर पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में है तो देन द फील्ड शुड बी समवेयर सेपरेटेड एंड पैरेलल टू ईच अदर। और अगर पेशेंट की पोजीशन स्टर्टिंग है, प्रोन है, तो इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अगर प्रोन में है, सिटिंग में है, तो आप सिटिंग में है तो पैर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होने चाहिए, लेट सपोज, ठीक है। प्रोन में है उस हिसाब से कि फुल बॉडी वेट शुड बी सपोर्टेड बाय द काउच और पिलन एक्सेट्रा। तो इन सर्टेन सिचुएशन कहीं पे बहुत बारी अगर समटाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम पोजीशन को वेरी भी करते हैं, तो वी आल्सो रिक्वायर टू एडजस्ट द हेड पीस ऑफ द ट्रीटमेंट टेबल। हेड हेड एडजस्टेबल ट्रीटमेंट होता है ना, हेड पीस जिसमें मुंह रखने की जगह होती है, तो वो काउच के ऊपर वेरी करता है। समटाइम कायरोप्रैक्ट काउच होते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल भी होते हैं कि आप सर्वाइकल को, थोरेसिक को, लंबर को अलग एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अपने हिसाब से हाइड्रोलिक काउचेज होते हैं जो ऊपर नीचे होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं, वो आप अपनी हाइट के हिसाब से भी उसको एडजस्ट करते हो, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पे मैंने दी है। सो थेरेपिस्ट फ्रीक्वेंटली नीड टू अडेप्ट द वेरियस पोजीशन, थेरेपिस्ट ने तो बार बार अपनी पोजीशन चेंज करनी है, डिपेंड करता है टेक्निक कौन सी परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है, मोबिलाइजेशन कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। while the when the manual therapy session is done basically, now the therapist need to provide the instruction to the patient, guide the patient basically regarding the post treatment exercise and post treatment position as well. So by following these standardized protocol mentioned above, जिस तरह हमने डिस्कस किया, तो पेशेंट की पोजीशन जो है वो ड्यूरिंग मैनुअल थेरेपी टेक्निक जो है, थेरेपिस्ट शुड इंश्योर द कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट while priority while giving the priority to the patient safety and comfort. देन आफ्टर द पेशेंट पोजीशन वी हैव अ थेरेपिस्ट पोजीशन, तो वो भी मैनुअल थेरेपी टेक्निक के दौरान वेरी करती है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप फॉर एग्जांपल समटाइम यू यू आर अ गुड एट अ गुड हाइट एंड यू आर वर्किंग ऑन द लो काउच बाय बेंडिंग योर स्पाइन, दैट इज आल्सो डिस्कम्फर्ट एंड नॉट कंफर्टेबल फॉर द थेरेपिस्ट एज वेल। तो पीटी एज अ थेरेपिस्ट, एज एनी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर मस्ट नीड टू फोकस ऑन हिज हेल्थ फर्स्ट, हिज पोजीशन एज वेल, ताकि आपने इतनी भी कोई गलत पोजीशन नहीं बनानी इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी मैनुअल थेरेपी टेक्निक, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देन वी गो फॉर अ हैंड प्लेसमेंट एंड फिक्सेशन। हैंड प्लेसमेंट एंड फिक्सेशन मतलब आपके हैंड की प्लेसमेंट, जिस तरह मैंने बताया कि अगर आप स्पाइनस प्रोसेस को मोबिलाइज करते हो तो आपकी पोजीशन वेरी होगी, आप ट्रांसफर्स को करते हो तो वेरी होगी। देन यू गो हैंड प्लेसमेंट, ग्रिप के ऊपर भी आ जाता है। फिक्सेशन एंड स्टेबलाइजिंग, फॉर एग्जांपल इफ यू आर working on your shoulder, then the elbow and wrist should be stabilized, मतलब should not be used in during your treatment session. तो स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन, समटाइम लेट सपोज आप लंबर पे ट्रैक्शन देते हो काउच के थ्रू,
तो आपने पहले लंबर स्पाइन को बेल्ट के साथ मोबिलाइज करना है। ये बहुत सारी चीजें होती है। फिक्सेशन एंड स्टेबलाइजेशन कैन कम फ्रॉम द बेल्ट एज वेल फॉर अ सेफ्टी एंड फॉर अ प्रॉपर effectiveness because the belt they are used as a lever. So this segment basically play a crucial role ये मैनुअल थेरेपी की जो टेक्निक्स है उसमें एप्लीकेशन और सेफ्टी, एप्लीकेशन ऑफ दीज गैजेट्स एंड सेफ्टी जो वो मैटर करती है। तो थेरेपिस्ट के एंड जो है पोजीशन किए जाते हैं स्ट्रेटेजिकली इन ऑर्डर टू मीट द स्पेसिफिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आर ज्वाइंट। सो दिस पोजीशन या प्लेसमेंट वेरी करती है पेशेंट और थेरेपिस्ट की हाइट और उसका जो ट्रीटमेंट एरिया है उस हिसाब से। तो मोस्ट ऑफ द बेसिक ज्वाइंट जो टेस्ट एंड मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स है, आप एक हाथ से पेशेंट्स की बॉडी को स्टेबलाइज करते हो और दूसरे हाथ से जो है उसको मूव कराते हो। दिस इज द आइडियल पोजीशन फॉर अ हैंड प्लेसमेंट। देन फिक्सेशन और स्टेबलाइजेशन जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व करती है सिक्योरिंग अ पेशेंट्स बॉडी ताकि वो गिरे ना, ठीक है। आर टू प्रिवेंट द अनवांटेड मूवमेंट, जो मूवमेंट आपको दरकार नहीं है उसको फिक्स करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आप फिक्सेशन यूज करते हो। तो ये आपको बेसिकली एक्सपोज करता है आपका जो टारगेटेड एरिया है जिसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, ट्रीटमेंट देना चाहते हो, टेक्निक अप्लाई करना चाहते हो, उसके अलावा जो ज्वाइंट्स हैं वो स्टेबलाइज हो जाए, वो प्रिवेंट करें अनवांटेड मूवमेंट को। तो जो दोनों चीजें हैं हैंड प्लेसमेंट और आपकी स्टेबलाइजेशन जो है वो मैटर करती हैं पेशेंट की नीड और आपके थेरेपी के गोल के ऊपर। तो प्रॉपर इनकी एग्जीक्यूशन होना बहुत जरूरी है। इट एनहांसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनुअल थेरेपी टेक्निक। मैनुअल थेरेपी टेक्निक की जो इफेक्टिवनेस है उनको भी इनहेंस करती है और पेशेंट के कंफर्ट, सेफ्टी और ट्रीटमेंट के इफेक्टिवनेस को भी जो है बड़ा प्रमोट करती है, ठीक है। नाउ वी हैव अ थेरेपिस्ट स्टेबल हैंड एंड थेरेपिस्ट मूविंग हैंड। थेरेपिस्ट स्टेबल हैंड मतलब जो हैंड अनवांटेड मूवमेंट को प्रिवेंट करने के वाला जो जॉइंट है उसको स्टेबलाइज करने के लिए बना है। और दूसरा मूविंग हैंड, जिस हाथ से आपने जो है वो ज्वाइंट को मूव कराना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम गोनियोमीटर यूज करते हैं उसमें एक स्टेबल हैंड होता है, उसमें मूविंग हैंड होता है। तो थेरेपिस्ट स्टेबल हैंड मैनुअल थेरेपी टेक्निक के दौरान ये स्टेबलाइज करता है। नाम ही बताता है थेरेपिस्ट स्टेबल हैंड, थेरेपिस्ट का स्टेबलाइजिंग हैंड। तो ये हाथ यूज होता है स्टेबलाइज और फिक्सेट करने के लिए उस ज्वाइंट को जो आपको मूव नहीं कराना। जो दूसरा हैंड मूविंग हैंड होता है वो परफॉर्म करता है मूवमेंट को, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो टिपिकली पोजीशन करना प्रोक्सिमल जॉइंट को ताकि टू टू स्टेबलाइज द एरिया विच इज बीइंग ट्रीटमेंट या जो एडजस्टेंट एरियाज हैं। तो एडिशनली फिंगर ऑफ स्टेबल हैंड में बी यूज फॉर पेल्पेशन। और जो हाथ से आपने स्टेबलाइज कर लिया, जो उसी हाथ की फिंगर्स हैं वो पेल्पेशन के लिए यूज होती है, ज्वाइंट की पोजीशन पेल्पेट करने के लिए, मोबिलिटी या रेस्पॉन्स टुवर्ड द टेक्निक। तो इन न्यूमरस मोबिलाइजेशन टेक्निक में क्या होता है कि थेरेपिस्ट मेंटेन करता है स्टेबिलिटी को एक हाथ से और दूसरे हाथ से वो मूवमेंट को परफॉर्म करता है। सो दिस इज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट थेरेपिस्ट स्टेबल हैंड। नेक्स्ट प्रोबेबली वी वुड बी हैविंग, ओके, नाउ द पेल्पेटिंग द जॉइंट मूवमेंट से आपको ये पता चलेगा कि कौन सी मूवमेंट हो रही है, लाइक ऑर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट है या अगर कोई और चीज भी पेल्पेबल है जो आपको पेन रिस्ट्रिक्शन कर रही है, वो भी पेल्पेशन से पता चल जाता है, ठीक है। लाइक द पेल्पेटिंग फिंगर जो है, जो आपकी पेल्पेट करना चाह रही है, वो पोजीशन किया जाता है टारगेटेड जॉइंट के स्पेस के ऊपर ताकि वो दूसरे जॉइंट पार्टनर के साथ कांटेक्ट रहे। तो मोस्ट कॉमनली यूज कांटेक्ट प्रोसेस कैसे, फॉर एग्जांपल ऑक्सीपेट पे आपको मेस्टोइड प्रोसेस, ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन। एटलस पे एस्कुलर एरिया पे आपको क्या मिलता है, कौन सा लैंडमार्क है, पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ स्पाइनस प्रोसेस CT2-7। थोरेसिक स्पाइन के आप कौन से पैल्पेट करते हो, स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस। लंबर पे स्पाइनस प्रोसेस, सैक्रोइलिक जॉइंट पे सैक्रल सल्कस या। तो व्हेन असेसिंग द स्पाइनल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, आप किसको असाइन करोगे, तो आप पेल्पेटिंग जो फिंगर होगी आपकी उसको पोजीशन कहाँ पर करोगे, स्पाइनस प्रोसेस, लेकिन पोस्टीरियर एस्पेक्ट से, ठीक है। अगर आप किसी की स्पाइनल फ्लेक्शन को असेस करना चाहते हो, एग्जामिन करना चाहते हो, असेस करना चाहते हो, तो उसको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में फिर आप उसके स्पाइनस प्रोसेस कहाँ से पेल्पेट करोगे, पोस्टीरियरली। दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द पोजिशनिंग। देन ड्यूरिंग द एंड फील्ड टेस्टिंग, एंड फील्ड टेस्टिंग के दौरान भी आप जेंटली एनहेंस कैसे करोगे, कांटेक्ट प्रेशर आप अपना बढ़ाते हो स्टेबल हैंड का ताकि आपने एंड फील करनी अगर इफ नीडेड, ठीक है। एंड देन फोर आर्म टू स्टेबलाइज द वन जॉइंट पार्टनर एज वेल। फिक्सेशन कैसे रोल प्ले करते हो, फिक्सेशन प्लेज अ की रोल इन द ग्रेड 3 स्ट्रेच मोबिलाइजेशन, क्योंकि उसमें क्या होता है कि स्लो एंड सस्टेन मूवमेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज होती हैं। और फिक्सेशन को इनहेंस करने के लिए आपका एक हाथ क्या काम करेगा, एज अ जॉइंट लॉकिंग वर्ड यूज होगा, ठीक है। जिस तरह हमने ज्वाइंट लॉकिंग एट द पेज ऑफ 36 यूज किया उसको थोड़ा सा पढ़ ले, जिसमें फिक्सेशन विद बेल्ट एंड फिक्सेशन विदाउट बेल्ट भी हमने डिस्कस किया है। सो एज अ प्रोफिशिएंट मैनुअल थेरेपिस्ट
then should possess the ability to execute the stabilizing या fixing, mobilizing या moving function। मतलब आपको दोनों हाथ के सही यूजेज और सही कह ले कि एप्लीकेशन का पता होना चाहिए। एडिशनली फिक्सेशन कैन बी आगमेंटेड विद द यूज ऑफ द वेजेस, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिक्सेशन विथ बेल्ट एंड फिक्सेशन विदाउट बेल्ट। ठीक है। नाउ कम टू द थेरेपिस्ट मूविंग हैंड। तो एक हाथ अगर आपका स्टेबलाइजिंग है, दूसरा मूवमेंट प्रोड्यूस कराएगा जो आपने मूवमेंट प्रोड्यूस करानी है। तो मूवमेंट जो एग्जीक्यूट कर रहा है थेरेपिस्ट का मूविंग हैंड, दे आर बेसिकली टेलर टू अचीव द थेरेपेटिक जो आपके गोल है, लाइक ज्वाइंट मोबिलिटी को इंप्रूव करना है, मसल टेंशन को इंप्रूव करना है। हाउएवर एडिशनली थेरेपिस्ट का जो मूविंग हैंड होता है वो आपको पैल्पेशन में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है। ओके, ये कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो दोनों आपकी जो मूविंग और आपका पेल्पेटिंग स्टेबलाइजिंग हैंड है वो आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट के लिए मॉनिटर करने के लिए इंतहाई जरूरी होता है। एक स्किल्ड मैनुअल थेरेपिस्ट ही एबल होता है ताकि वो स्टेबलाइजिंग और फिक्सिंग, मूविंग और मोबिलाइजिंग फंक्शन को इक्वली अच्छे तरीके से अप्लाई कर सके विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस। देन योर ग्रिप एज वेल, जिस तरह मैंने बताया ग्रिप बड़ा आपको इफेक्टिव है। ग्रिप भी मैटर करती है। एक लीन बॉडी है, आपने उसके ऊपर टाइट ग्रिप करी हुई है, तो यू कांट परफॉर्म द मूवमेंट यू वांट बेसिकली। तो द ग्रिप आल्सो डिटरमाइन की जो थेरेपिस्ट की एबिलिटी है वो कंट्रोल कितना कर रही है मूवमेंट को और होल्ड कैसे उसको कर रही है एट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बेसिकली। तो जो अप्लाइड फोर्स होता है वो बड़ा मैटर करता है। तो इट अलाउ बेसिकली थेटरमेंट, इट अलाउ थेरेपिस्ट टू मेंटेन अ प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द टारगेटेड एरिया। तो योर ग्रिप आल्सो मैटर। grip also provides the stability to the both the therapist and patient's body as well, जो कि प्रिवेंट करती है अनवांटेड मूवमेंट को। ठीक है। मजीद डिस्क्रिप्शन भी मैंने ऐड की है, लेकिन और मॉडिफाई और ग्रिप को एडजस्ट करना वो तो आपके पेशेंट के कंफर्ट के लिए। एक पेशेंट कह रहा है कि आपकी ग्रिप से मुझे पेन हो रहा है, तो आपको अपनी ग्रिप थोड़ी सी लूज करनी चाहिए। ठीक है। ओवरऑल ग्रिप एज अ सर्व करती है फंडामेंटल टूल फॉर द थेरेपिस्ट विच अलाउ हिम टू effectively apply the therapeutic technique for a therapeutic purposes and also to optimize the treatment outcome in a manual therapy या other maneuvers for the rehabilitation। अब प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले जॉइंट को प्री पोजिशनिंग करना। तो इट बेसिकली रिफर्स अ डेलिबरेट प्लेसमेंट ऑफ अ जॉइंट इन स्पेसिफिक पोजीशन। जब आप किसी जॉइंट को स्पेसिफिक पोजीशन में रखते हो तो आप क्या कर रहे हो? प्री पोजीशन कर रहे हो, जॉइंट को प्री पोजीशन बना रहे हो। दिस प्रिपरेटरी स्टेप, ये वाला जो स्टेप है, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप जो इंटरवेंशन अप्लाई करने वाले हो उसकी इफेक्टिवनेस को इनहेंस करना, ताकि आपका जो टारगेटेड टिश्यू है वो डायरेक्टली चला जाए। फॉर इंस्टेंस, अगर आप किसी जॉइंट को मोबिलाइज कर रहे हो और उसको आपने क्लोज पैक पोजीशन में रखा हुआ है, आपने पहले उसको पोजीशन नहीं किया, लूज पैक पोजीशन में नहीं लिया है, लूज पैक पोजीशन में नहीं लिया है, तो आप उसको प्रॉपरली मोबिलाइज नहीं कर सकते। तो आपको नहीं पता है लूज पैक और क्लोज पैक पोजीशन क्या है, तो आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है। सो फॉर अ बेस्ट इफेक्ट एंड टू अवॉइड द पेन, केयरफुली प्री पोजिशन द स्पाइनल सेगमेंट एज वेल। तो स्पाइनल सेगमेंट के ऊपर स्पेशली आप एहतियात करें, अगर आप उसको जो है वो अप्लाई करते हो तो उसको प्री पोजिशन करना लाजिम है। ठीक है। तो इफ द इंटेंट ऑफ अ टेक्निक इज पेन, अगेन वही बात है। ठीक है। तो आप यू विल चूज द एक्चुअल रेस्टिंग, और अगर आपका इंटेंट जो है स्ट्रेचिंग है, लेट्स सपोज, तो 3D पोजीशन होगी, कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो एट द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन, कहीं पे भी। ठीक है। बेनिफिट्स क्या है प्री पोजिशनिंग का? इनसे फायदा क्या होगा? सबसे पहले ये थेरेपिस्ट का एक्सेस जो है वो टारगेट टिश्यू के ऊपर बढ़ाता है, इंप्रूव करता है। उसके बाद ये फैसिलिटेट करता है मोबिलाइजेशन किसकी? रिस्ट्रिक्टेड या स्टिफ ज्वाइंट की। देन सर्टेन ज्वाइंट पोजीशन है जो आपका पेन को कम कर सकती है, या बढ़ा सकती है, या डिस्कम्फर्ट कर सकती है मूवमेंट से रिलेटेड। तो इट बेसिकली अलो अ मोर कंफर्टेबल एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट एज वेल। ठीक है। एंड देयर आर द सेवरल मेनी मोर। ओके जी, मजीद अगर आपने इन पोजीशंस के बारे में समझना, सो ओवरऑल द जॉइंट पोजिशनिंग जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है मेनल थेरेपी प्रैक्टिस का। मजीद अगर आपने देखना तो इसी बुक के चैप्टर नंबर 2 पे चले जाए, स्पाइनल मूवमेंट, पेज नंबर 21, एंड जॉइंट पोजिशनिंग पढ़ लें। ठीक है। देन वी हैव अ मोबिलाइजेशन टेक्निक। मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन दो ही टेक्निक्स होती है। तो स्पाइनल मोबिलाइजेशन के लिए आप चैप्टर नंबर, मेरा जो 6 है मेरे ख्याल से, पेज नंबर 144 इसी बुक का, वो पढ़ लें। तो इसके स्पाइनल मोबिलाइजेशन प्रोवाइड करता है कंप्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ मोबिलाइजेशन टेक्निक। इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, इस ब्रीफली मेंशन किया गया है ताकि हम पोजिशनिंग पहले करें बिफोर यू अप्लाई एनी टेक्निक। तो मोबिलाइजेशन टेक्निक जो है वो दे शुड बी परफॉर्म द स्लोली, एंड देन यू नो देयर इज अ ग्रेड 1 and 2 and all. So grade 1, 2 for the pain, grade 3 for the ranges. Like as I mentioned, for relaxation, for a pain relief, you will prefer grade 1 and 2 select zone.
For relaxation, we prefer 1 and 2 transition zone, and for stretching, beyond the transition zone. So this is how you perform. ग्रेड 3 जो हमने केल्टन बॉन्ड के पढ़े थे वो पढ़ लीजिएगा. थेरेपिस्ट सेफ्टी एंड ट्रीटमेंट इफेक्टिव, दे आर फर्दर इनहेंस. मजीद थेरेपिस्ट की सेफ्टी और ट्रीटमेंट के इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए आप प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स भी अपनी बढ़ा सकते हैं. जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं कभी भी स्टैंडिंग में सर्वाइकल मोबिलाइजेशन, थेरेपिस्ट स्टैंडिंग में और पेशेंट सुपाइन में हो, तो आई वोंट प्रेफर द व्हाट आई से कि आई वोंट प्रेफर द आई विल प्रेफर द बॉडी मैकेनिक्स. ठीक है, मैं अवॉइड करूंगा कि झुककर सर्वाइकल को मोबिलाइज करूं. ठीक है, रादर देन मैनिपुलेट करूं या मोबिलाइज करूं. आई विल प्रेफर द इन बेंडिंग अ लिटिल बिट. जस्ट अ सेक. तो द एडजस्टेबल ट्रीटमेंट टेबल जो है वो भी आपके थेरेपिस्ट की सेफ्टी बढ़ाता है. एक थेरेपिस्ट शॉर्ट हाइटेड है तो वो एडजस्ट, बजाय इसके कि वो खुद स्टूल के ऊपर चढ़े, रादर देन वो काउच को नीचे कर दे. और अगर कोई थेरेपिस्ट लॉन्ग हाइटेड है, लेट सपोज, तो ये चीजें मैटर करती है. ठीक है, एंड देन यू यूज डिफरेंट गैजेट्स एज वेल. तो ये थेरेपिस्ट सेफ्टी में आता है. जिस तरह मैंने बताया कि रादर देन कि आप अपने हाथ का फोर्स अप्लाई करो, आप अपनी बॉडी का फोर्स ट्रांसफर करो. तो अलाउइंग द पेशेंट टू assess a passive movement also actively. This last lessens the effort exerted by the manual therapist as well. आप पेशेंट को कहो, रादर देन डायरेक्टली उसकी पैसिव मूवमेंट अप्लाई करो, आप एक्टिव असिस्टेंट की तरफ आ जाओ. ठीक है, देन वी यूज द सिंबल्स. सिंबल्स मतलब कि इस तरह की बहुत सारी प्रेजेंटेशन है जो किस्म की एब्रीविएशन होती हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट या अदर मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिशनर जो है वो यूज करता है. और इन सिंबल्स का मकसद क्या होता है? एज ए बॉडी चार्ट होता है. जिस तरह हम TX लिखते हैं फॉर अ ट्रीटमेंट, DX लिखते हैं फॉर अ डायग्नोसिस, इस तरह करके BD लिखते हैं मतलब 2 times in a day, OD लिखते हैं once in a day, TD लिखते हैं एक्सेट्रा, TDS लिखते हैं. जिस तरह GP लिखता है कि मेडिसिन आपने दिन में 2 बार खानी है, 3 बार खानी है, इस तरह करके. तो ये रिप्रेजेंट करता है बहुत सारी मूवमेंट्स को, पोजीशन को. जिस तरह स्नैग में हम कमांड देते हैं कि एरो का निशान इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ ग्लाइड, एक्सेट्रा, इस तरह करके. ठीक है, तो कुछ चार्ट्स हैं और फ्यू सिंबल्स एंड फिजियोथेरेपी में जो यूज होती है. एज यू कैन सी द सिंबल ऑफ द एरो ऑन वन साइड, ताकि ये डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ ग्लाइड या डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टू इंक्रीज या डिक्रीज फोर्स और इंटेंसिटी. RLL इंडिकेट करता है राइट लेफ्ट को. इस तरह की बहुत सारी हैं. PA पोस्टीरियर इंटीरियर, AP एंटीरियर पोस्टीरियर, रोम रेंज ऑफ मोशन, आर्ट हम लिखते हैं एक्टिव रिलीज टेक्निक, MFR मायोफिशियल रिलीज, HVLA snag, nag, mat, muscle energy techniques. So there are the several and many more. So these are just example in order to understand the symbol and abbreviation जो कि commonly physiotherapy practice में use होती है for a communication and documentation among the healthcare professional and from health professional to patients as well. Then we have a recording. Recording मतलब indirectly documentation. आपके पास जो भी चीज है उसको रिकॉर्ड करो. तो indeed जो डॉक्यूमेंटेशन है स्पेसिफिक एवोल्यूशन फाइंडिंग की, एज अ मैनुअल थेरेपिस्ट, एज एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बहुत ही जरूरी होती है. सो वी हैव प्रीवियसली कवर्ड द सिंबल एंड एब्रीविएशन, जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया. इसको हम फिर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. रिकॉर्ड मतलब कोई भी हिस्ट्री आपने रिकॉर्ड कर ली, उसको कंप्यूटर पे मेंशन कर दिया, अपने पोर्टफोलियो पे मेंशन किया, वेबसाइट्स पे मेंशन किया. सो रिकॉर्डिंग इज वेरी कंपल्सरी, राइट. आइडेंटिफाइंग एनी इंटरवर्टिब्रल सेगमेंट, जब एक एक सेगमेंट के ऊपर आप आइडेंटिफाई करते हो, लेट सपोज, तो जाहिर सी बात आप उसको नाम भी देते हो, उसका नॉमेनक्लेचर भी है. अब C किसको इंडिकेट करता है? सर्वाइकल स्पाइन को. C1 फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, C2 सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा. उसी तरह T फॉर थोरेसिक, L फॉर लंबर, S फॉर सैक्रल वर्टिब्रा. ओके, so this notation system is basically allow for a clear and concise identification. Let's suppose अगर मैं लिखता हूँ मोबिलाइजेशन, उसके सामने एरो होगा फॉर एग्जांपल राइट साइड का, and लिखता हूँ T3, तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि T3 को मोबिलाइज करना है ऑन द राइट साइड. दैट मीन्स द लेटरल मोबिलाइजेशन. So this is how you need to understand. And then we have a, after the notation system, we have a star diaphragm, star diagram. इसमें एक स्टार डायग्राम है जो फाइनेस्ट टूल है, जो कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है. इन जिस तरह नोटेशन सिस्टम हमने रिटर्न में किया, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट फील्ड में. फिजियोथेरेपी में भी ये होती है, उसके अलावा भी. टिपिकली इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल पॉइंट होता है, जो मैं आगे आपको पहले शो करता हूँ. इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल पॉइंट होता है और फिर वो सराउंडेड बाय लीनियर और स्पोक्स वहां पर मौजूद होते हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं या पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्टार डायफ्राम बेसिकली डिफरेंट असेसमेंट के लिए यूज होता है, इवोल्यूशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, ताकि ये कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू देता है
डिसीजन मेकिंग का। जैसे आपके सामने स्टार डायग्राम की पिक्चर बनी हुई है, एक सेंट्रल पॉइंट है, राइट, उसके एक तरफ राइट साइड है, दूसरी तरफ लेफ्ट साइड है, जिस तरह आपकी गर्दन होती है, राइट। व्हेन यू बेंड इट ऑन राइट साइड यू कॉल इट द राइट साइड बेंडिंग, व्हेन यू बेंड इट फॉरवर्ड इट इंडिकेट टू द फ्लेक्शन, फॉरवर्ड फ्लेक्शन, व्हेन यू गो फॉर लेफ्ट साइड इट इंडिकेट टू द लेफ्ट साइड बेंडिंग। तो हियर आर सम मेंशन। तो एक एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रही होती है और उसको आप एक्सप्लेन करते हो, नोट करते हो। तो ये नोटेशन सिस्टम में स्टार डायग्राम आपको विजुअल पिक्चर जो है रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक दिस इज द लास्ट topic, if I'm not wrong. Yes. So we are done with the chapter number 12 as well. And then we will proceed toward the cervical spine, thoracic, and lumbar et al. So again, don't forget to subscribe and share my channel. And then don't forget to put your valuable feedback in the comment box. And also let me know next topic, next book जो मैंने suggest की है, वो there are the several options. Like I can go for a physical rehab by Susan O'Sullivan. I can go for management of musculoskeletal disorder by Darlene. I can go for therapeutic. I can go for other subject you want, cancerology, biomechanics. Lekin must let me know. And don't forget to put your valuable feedback on my social media platform. The what I was talking about on named with Center of Manual Therapy, and मेरा एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है रिहैब एक्सपर्ट पैनल के नाम से। उसको आप एज अ ऑडियंस भी ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम एनी कंट्री। यू कैन आल्सो ज्वाइन एज अ स्पीकर इफ यू फॉलो एंड मीट विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो भी सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होगा। वहां पर हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे, एविडेंस बेस्ड केस डिस्कस करेंगे, टेक्निक डिस्कस करेंगे और उसका एविडेंस देंगे। नॉट ओनली we are going to present, but any speaker can join online and any speaker can also present the topic and case as well with evidence. So thank you so much. Till then, keep watching Center of Manual Therapy.